Masma Ali, PRO to Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Institute of Cardiology. اگر ایڈوانس میں بتا دیتے تو میں شاید اپنے ساتھ ڈیٹا وغیرہ بھی شیئر کر لیتی آپ لوگوں کے ساتھ. بینگ اے PRO جو عوام کی ضرورت میں نے اپنے ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ جب ان کو ایک ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو کس طرح سے ہم ارینجمنٹس کر کے ان کو دے دیتے ہیں. سیف بلڈ ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی زندگیاں بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اب اس سے زیادہ جو ہے نا میں کیا ڈیٹا شیئر کر نہیں سکتی آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کی ضرورت کو اگر آپ لوگ سمجھیں گے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانے میں آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. آپ نے بہت زبردست بہت اچھے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی. قرآن میں ہے اللہ پاک جل جلالہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو میم تھینک یو سو مچ. آپ کے بڑے الفاظ ہم فور ایور یاد رکھیں گے، ہماری رہنمائی کا بھی سبب ہے. آپ سب کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشان صاحب who is VC of the الحمد اسلامک یونیورسٹی. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا سر، اینڈ آپ ہمارے اس خوبصورت سے ایونٹ کا حصہ ہے. We really means a lot. It's our pleasure that you are part of this event. Thank you so much sir. And میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اسسٹنٹ پروفیسر بلوچستان یونیورسٹی سے عبدالودود صاحب اینڈ AMC کمپنی عارف مسعود who is a social leader and as well as تعمیر صحت ایجوکیشن سوسائٹی داؤد خان صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے. We warmly welcome you all once again to be the part of this event. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج کے ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا کی طرف انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہمارا ایریا ہے سیف بلڈ کے لیے ایک کائنڈ آف اویئرنیس جو ہے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. اور جس طرح آج یہاں پر لوگ موجود ہیں جس میں ہمارے مختلف بلڈ بینکس کے اونر موجود ہیں، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پروفیشنلز موجود ہیں، یونیورسٹی کے ہمارے اس وقت ڈائریکٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی دور دور سے آئے ہوئے ہیں. میں نے سنا ہے کہ خزدار سے بھی آئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر سیف بلڈ محفوظ بلڈ کے حوالے سے کچھ سیکھ کے اٹھیں گے اور بینگ اے پروفیشنلز، بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہم ایک میسیج تھرو آؤٹ دا بلوچستان عام کر سکیں گے. میں نے 3-4 سلائڈ کی ایک پریزنٹیشن بنائی تھی لیکن شاید ادھر اس طرح سسٹم نہیں ہے برابر. ہم میں سے ہر کسی نے کبھی نہ کبھی زندگی میں بلڈ دیا ہوگا اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ بلڈ کسے لگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب نے کسی کی زندگی بچانے میں رول ادا کیا ہے. بلڈ کی ضرورت ہمیں 4-5 جگہوں پر لازماً پڑتی ہے. ایک سرجریز، کسی کا آپریشن ہے، بعض اوقات بہت میجر آپریشن ہوتے ہیں، مائنر آپریشن ہوتے ہیں، بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ان ماؤں کو جو بچہ پیدا کرنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے. ایک روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس یا انڈسٹریل ایکسیڈنٹ جن میں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تھیلیسیمیا کے بچے یا پیشنٹ اور کینسر کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی میں بلڈ کی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے. بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ صرف بلڈ ڈونیشن نہیں ہے بیسیکلی، اصل میں ہم اس کو کہتے ہیں سیف بلڈ ڈونیشن. میرے ساتھ اس وقت ہیپاٹائٹس کنٹرول سے بھی لوگ موجود ہیں، ایڈس سے بھی لوگ موجود ہیں. میں ادھر بلوچستان میں بڑھتے ہوئے ہیپاٹائٹس B-C کے کیسز یا HIV ایڈس کے کیسز کی بات بالکل نہیں کروں گی کیونکہ وہ موجود ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہماری فگرز کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن نے جب کام کرنا شروع کیا تو ہم نے ایک چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کریں. جب بلڈ کی اسکریننگ کی جاتی ہے تو زیادہ تر جگہوں پر جو ہے وہ ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ استعمال کی جاتی ہے. ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ کے لیے جو ہے نا اس کے اپنے الگ سیپریٹ کرائٹیریا ہیں، لیکن کمیشن نے یہ زور دینے کی کوشش کی کہ ہم جو انٹرنیشنل لیولز کی جو اسکریننگ میتھڈ ہے جس میں الائزا اور کلایا شامل ہے، ہم اس کے تھرو اسکریننگ کریں
ताकि ऑलमोस्ट 0% चांस रहे कि गलती से भी हेपेटाइटिस बी, सी या HIV जो है वो ट्रांसमिट ना हो सके। अगर हम थोड़ा सा एक चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि एक हेपेटाइटिस सी, बी या HIV एड्स का जब पेशेंट बन जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कितनी कॉस्ट कंज्यूम करती है। अब चाहे वो अपनी जेब से दे, चाहे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हो, उससे कहीं बेहतर है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं। और मेरे ख्याल में ये बहुत हम सब ने सुना है बचपन से लेकर अब तक कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब हम सेफ ब्लड की बात करते हैं तो हेल्दी डोनर का मतलब ये है कि जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया मौजूद ना हो, उसका ब्लड नंबर 1। नंबर 2 उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, नंबर 3 उसकी प्रॉपर स्टोरेज, और नंबर 4 है कि राइट पेशेंट को राइट टाइम पे वो ब्लड मिल जाए। एक ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जी एक ब्लड की आपने 500 ml निकाल लिया, एक पेशेंट को लगा दिया। उसको कंपोनेंट में तकसीम करके, अब जो नेशनल अब तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया ये है कि आप उसको कंपोनेंट में तकसीम करके लगाएं, RBC को अलग कर लें, प्लेटलेट को अलग कर लें और फिर लगाएं। जब सेफ ब्लड की बात आती है तो उस पर बहुत सारे कंसर्न्स भी निकल के आते हैं जो हम बीइंग अ हेल्थ केयर कमीशन के लोग हम फेस कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब टाइम नहीं होता है, पेशेंट मर रहा होता है, मजबूरी है हमें फौरन ब्लड लगाना पड़ता है। लेकिन इसको ज़रा दूसरे सिनेरियो में हम देखते हैं, टाइम नहीं होता, स्क्रीनिंग नहीं कर सके और लगा दिया विदाउट स्क्रीनिंग। अब क्या हुआ कि जिसको लगाया जिंदगी के स्टेज पे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV में मुब्तला हो गया और सारी जिंदगी के लिए उसके साथ अगर HIV है तो सोशल बाइकआउट भी हो गया उसकी फैमिली ने भी बाइकआउट कर दिया और पूरी उम्र के लिए जो है ना उसने एक जिंदगी बीमार वाली जिंदगी गुजारनी है जिसमें लेटर स्टेजेस में मल्टीपल किस्म के इन्फेक्शंस लग जाते हैं। सेम इज द केस विद द PNC। तो जिंदगी बचाने का कतन खून देके जिंदगी बचाने का ये मकसद नहीं है कि हम विदाउट स्क्रीनिंग को ब्लड लगा दें, क्योंकि ये एक जुर्म है हमारी इखलाकी, हमारी इंसानी, और अगर देखा जाए तो हमारी रिलीजियस जिम्मेदारी ये है कि हम किसी ज़िंदगी को बचाएं। रिलीजियस इसलिए कि हमने कुरान पाक में पढ़ा है कि अगर आप एक इंसान को बचाते हैं तो गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। इसको ज़रा गौर करें कि एक इंसान को बचाने का मकसद ये नहीं है कि हम उसको अनस्क्रीन्ड और किसी अनहेल्थी इंडिविजुअल का ब्लड लगा दें। दूसरी बात ये है कि ब्लड डोनेशन को किसी इमरजेंसी के लिए मत बचा के रखें, इसको एज अ वॉलंटियर आप एक प्रैक्टिस बना लें। साल में 3 से 4 दफ़ा आप ब्लड दे सकते हैं। 120 दिन में तो वैसे ही आपके RBCs ने ख़त्म हो जाना है और फिर नए RBCs बनने हैं। तो ये जो आपके पास ब्लड है, जो हेल्दी लोग बैठे हुए, ये आपके पास अमानत है किसी की ज़िंदगी की सूरत में जो आपको डोनेट करना है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आदत डालें साल में 3 से 4 दफ़ा ब्लड देने की। साथ ही आदत ये डालें कि ब्लड जो है प्रॉपरली स्क्रीन्ड हो। ये आपका हक है कि आप स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड चेक करें और ये आपका हक है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करें और ये आपका हक है कि आपको अगर कोई भी मसला होता है तो वो आप जो भी आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर लाई होती है उनको आप इन्फॉर्म करें। और बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, बीइंग अ ब्लड बैंक के ओनर, बीइंग अ लेबॉर्ट्री ओनर, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सेफ ब्लड डोनेशन को इंश्योर करें, ना कि ब्लड डोनेशन को, सेफ ब्लड डोनेशन को। मेरे ख्याल में अगर हम ये मैसेज कन्वे करें, लोगों में फैलाएं कि जी आप साल में 3 से 4 दफ़ा ब्लड दे सकते हैं और यकीन करें कि ब्लड देने के बाद जो RBCs बनते हैं वो आपके लिए और हेल्दी होते हैं, वो आपकी हेल्थ को और मज़ीद बेहतर करते हैं। तो इसको एक आदत बना लें, साल में 3 से 4 दफ़ा ब्लड देना, लेकिन विद स्क्रीनिंग के साथ कंफर्म करके, नॉट एज अ कि आप सिर्फ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसके साथ मैं ख़त्म करूँगी कि आपका खून का एक कतरा शायद किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है।
थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गजाला कहते हैं, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम कैरियर मदर ऑफ 3 हेमोफेलिक चाइल्ड्स। हेमोफेलिया क्या है, इसकी वजूहत क्या है और इसकी अलामात क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलती हूँ। दरअसल मेरे 3 बच्चों को हेमोफेलिया है और अनफॉर्चुनेटली मेरे एक बेटे की डेथ 2020 में हुई थी हेमोफेलिया की वजह से। तो तब जाके मुझे ये स्टेप लेना पड़ा कि मुझे हेमोफेलिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में इससे पहले हेमोफेलिया को लेके कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं थी। हमारे कुछ इदारे थे जो कि फैक्टर्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन कुछ एमरजेंसीज हो जाती हैं, सर्जरीज करवाना होता है और ऑन डिमांड जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अमूमन जैसे कि थैलेसीमिया में खून बनता नहीं है, हेमोफेलिया में खून जमता नहीं। ऐसा होता है कि फैक्टर डेफिशिएंसी के साथ अगर हमारे पास कोई भी बच्चा होता है तो उसमें अलामात ये होती हैं कि नाक से खून बहना, गम्स में प्रॉब्लम्स होना, खून का बहना, और अमूमन ये जो बच्चों में होता है वो सर्कमजेशन के दौरान हमें पता चलता है कि ही इज़ विद फैक्टर डेफिशिएंसी। आपको पता है कि फैक्टर डेफिशिएंसी जो है वो डिफरेंस होती है फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर 13 तक, और इनमें कुछ मिसिंग्स भी होती हैं। हम ज़्यादातर जो देख रहे हैं हम हेमोफेलिया को देख रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में जितने भी हेमोफेलिक्स होते हैं या विद डिफरेंट फैक्टर डेफिशिएंसीज हम सबको देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो हेमोफेलिया पे है, क्योंकि हेमोफेलिया के पेशेंट जो है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत मैं आपको ये इंट्रोडक्शन करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं। फ़िलहाल बलूचिस्तान में हेमोफेलिया को लेके कोई भी काम नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम BICHQ में हम ये काम कर रहे हैं और हम बलूचिस्तान के पेशेंट्स को फ्री में ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सबसे कम कीमत है एक इंजेक्शन्स की, जिसको हम कह सकते हैं 250 IU के जो इंजेक्शन्स आते हैं उनकी कीमत 25,000 से स्टार्ट होती है। लेकिन चूंकि ये डोज कैलकुलेशन के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि एक पेशेंट को हम कितना डोज, कितने IUs लगा सकते हैं, तो अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हमें उस पेशेंट को 100% पे लाना होता है, और 100% पे लाने के लिए मीन्स के बिफोर सर्जरी जो है वो हमें एटलीस्ट 2 से 3 लाख का खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये फैक्टर्स जो है वो रजिस्टर्ड है, ये स्मगल होकर नहीं आती, जो कि अमूमन फैक्टर्स ईरान के रास्ते से स्मगल होकर आ रही होती है और उनकी लाइफ ओनली 12 आवर्स होती है। लेकिन जो फैक्टर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे पेशेंट्स को, ये प्रोलॉन्ग इनकी लाइफ होती है, मीन्स कि ये 36 से 72 आवर्स तक एक पेशेंट के जिस्म में काम कर रही होती है। ये फैक्टर्स हमें WFH प्रोवाइड कर रही होती है। WFH के अंडर HFP पाकिस्तान फाउंडेशन ऑफ हेमोफेलिया काम कर रहा है, और पाकिस्तान फाउंडेशन ऑफ हेमोफेलिया के अंडर हमारे 5 चैप्टर्स काम कर रहे हैं, जिसमें सूबा सिंध, सूबा सरहद, सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान में 5 चैप्टर्स हैं। और बलूचिस्तान जो है वो पिछले 3 साल से यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान से आज तक हमने 250 तक के पेशेंट्स रजिस्टर किए हैं, और इनमें कुछ सस्पेक्टेड केसेस भी हैं। तो आज के इवेंट के हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डायग्नोज नहीं होते, तो उन पेशेंट्स को हमें टेम्परेरी जो है वो FFP या CPs पे जो है शिफ्ट कराना होता है, ज़्यादातर FFPs पे, क्योंकि FFPs में सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए उनको FFPs की ज़रूरत होती है। हम साल में 2 से 3 मरतबा जो है ब्लड कैंपिंग भी कर रहे होते हैं, और वो ब्लड हम RBC और पश्तूनख्वा ब्लड बैंक वालों को देते हैं, जिनके बदले में वो हमें ब्लड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, CPs भी और FFPs भी। तो बस आखिर में मैं आपको इतना बताती चलूँ कि ब्लड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जिस पे जो वक्त गुजर रही होती है वही डिस्क्राइब कर सकता है कि बहुत मुश्किल होता है, और इस ब्लड से ही हम बहुत सी जानों को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम ने जो बताया कि इसका खून जमता नहीं है आज, क्योंकि बेसिकली जो मेडिकल की जो टर्म्स हैं बहुत मुश्किल होती हैं, कोई अंग्रेज़ी बोलना जानता हो तब भी उसे नहीं पता जब तक वो बाकायदा पढ़ेगा नहीं या उन्हें समझेगा नहीं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सर असमतुल्लाह साहब का, सेक्रेटरी हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर शकील रोशन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर को मैं सुनने के लिए बड़ा बेताब हूँ,
اور تمام آرگنائزرز کا میں شکریہ ادا کروں گا، اسپیشلی جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا، سی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کا، اینڈ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی سے میں نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا تھا جب یہ ڈبل روڈ پہ ہوا کرتے تھے، تو سر عروہ صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، سر طلحہ سر جانتے ہیں، سر آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں میں، تو آج مجھے بڑی مطلب میں فیل کر رہا ہوں کہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے بات کرنا تھوڑی سی مجھے ہیزیٹیشن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ اچھا بھی لگ رہا ہے، اور اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو آپ سب سے معذرت۔ میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ ڈاکٹر داؤد صاحب کو میں یہاں پہ مدعو کروں اور ان کے جو ہے وہ لیکچر سنوں، ان کی بات سنوں۔ میرا خیال سے ہم سب بڑے بےتاب ہیں، سر پلیز آ جائیں، تشریف لے کر آئیں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری کہانیاں۔ اس ایونٹ کے آرگنائزرز کا جنہوں نے اس اہم ٹاپک پہ ہمیں یہاں پہ بلایا اور اچھے خاصے جو ہے نا مکتبہ فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جس میں ایجوکیشنسٹس بھی ہیں، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی ہیں، جس میں ہمارے بیوروکریٹس پالیسی میکرز ہیں وہ ہیں، اور والنٹیئرز ہیں، اکیڈمیشینز ہیں، جس طرح ہمارے وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف بلڈ بینک کے جو ہے نا روح رواں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ چند مخصوص بیماریوں کا ذکر کرنا یا ان کو جو ہے نا ان کی ایپیڈیمیالوجی آپ لوگوں کو بتانا، ان کے کازنگ فیکٹرز آپ لوگوں کو بتانا، اور ان سے بچنے کے جو ہے نا وہ مختلف طریقے بتانا، یہ ایک بہت ہی ضروری چیز یہاں پہ بنتی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں ایڈس کنٹرول پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، اور ایڈس کی صورتحال پاکستان میں اور بلوچستان میں کیا ہے اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ میں تو پریزنٹیشن بنا کے لایا تھا، لیکن یہاں پہ میرے خیال میں وہ ملٹی میڈیا کا سسٹم تھوڑا کام نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت HIV کے جو ایسٹیمیٹڈ نمبر آف کیسز ہیں وہ تقریباً 3,30,000 ہیں۔ 3,30,000 لوگ ایسٹیمیٹڈ پاکستان میں HIV کے پیشنٹس ہیں، اور اگر ہم بلوچستان کی بات کریں 12,000 سے لے کے 16,000 کے درمیان ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ پیشنٹس ہیں۔ جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے جس کو ہم IBBS سروے کہتے ہیں، جس میں ہم رسک گروپ کے بیہیویئر کو اور اس کے بایولوجیکل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، اس کے رزلٹ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ یہ ایسٹیمیٹڈ نمبرز جو ہے نا یہ ہم پریویس جو سرویز ہیں ان کو ہم ایکسٹراپولیٹ کر کے جو رزلٹ نکالتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 12 سے 16,000 لوگ ایسٹیمیٹڈ بلوچستان میں ہیں۔ جو 3,30,000 کیسز ایسٹیمیٹڈ ہمارے پاس پاکستان میں ہے، اس میں تقریباً اس وقت 82,000 لوگ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں یا ان کو اپنے HIV کا اسٹیٹس پتہ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 2.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان میں اپنے HIV کا اسٹیٹس نہیں معلوم، اور اسی لا علمی کی بنیاد پر وہ اس مرض کو مزید آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک چیلنج بھی ہے اور بہت بڑا رسک بھی ہے، کیونکہ جس طرح ہم اگر دیکھیں ہیپیٹائٹس پاکستان میں ایک بہت بڑا بوم کر کے جس طرح پھیلا ہوا ہے، ہر 10 میں سے مثال مجھے ابھی ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، پرانی فگر، ہر 10 میں سے ایک بندہ ہیپیٹائٹس B یا C کا شکار ہے، تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اور اگر HIV کو ہم کنٹین نہ کر پائے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے فیوچر میں HIV کا بھی یہی صورتحال ہو۔ اور جو 82,000 ہمارے پاس جن کو اپنا اسٹیٹس پتا ہے، اس میں 58,000 لوگ پاکستان میں ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جبکہ WHO کا جو پروٹوکول ہے یا جو UN کا پروٹوکول ہے اس میں جو HIV کے حوالے سے بات ہے انہوں نے 95 کا ٹارگیٹ دیا ہوا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس 1 لاکھ لوگ ایسٹیمیٹڈ لوگ ہیں تو اس میں 95,000 لوگوں کو اپنا اسٹیٹس معلوم ہونا چاہیے کہ میں HIV کا پیشنٹ ہوں، اور ان 95,000 میں سے 95% لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے،
और जिनको ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें से 95% लोग जो है ना वो वायरली सप्रेस्ड। जब पेशेंट वायरली सप्रेस्ड होगा तो वो आगे ये बीमारी नहीं फैलाएगा। हमारे पास पाकिस्तान में 4 जो है ना वो बड़े हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, 4 बड़े हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ सर्वेस के बाद हमारे पास आए हैं HIV के हवाले से। सबसे पहले वो लोग हैं जो कि नशा करते हैं, पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, यानी ये जो रगों के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ग्रुप ये है, तकरीबन 38% ऑफ द PWIDs आर इन्फेक्टेड विद HIV, यानी 100 में से 38 लोग वो HIV के शिकार हैं। दूसरे नंबर पे है मैन हैविंग सेक्स विद मैन, जिसमें कमर्शियल भी और नॉन कमर्शियल भी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हम समझ रहे थे कि शायद ये यूरोप या थाईलैंड या दूसरे मुल्कों में बड़ा फैक्टर है, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपने खुद यहाँ पे देखा होगा, सहाबी हज़रात यहाँ पे बैठे होंगे, रात को 10-12 बजे के बाद हमारा जिना रोड जो है वो बैंकॉक का मंजर पेश कर रहा होता है। अगर आप कभी नहीं देखा है, आप रात को कभी तजर्बाती तौर पर निकले, आपको जिना रोड ऐसे नज़र आएगा जैसे आप बैंकॉक में घूम रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांसजेंडर्स आते हैं या हिजड़ा सेक्स वर्कर्स आते हैं, उनमें ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और चौथे नंबर पे जो है ना वो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं। इन ग्रुप्स के अलावा जो आजकल पाकिस्तान में हाई रिस्क ग्रुप के अलावा जनरल पॉपुलेशन में जो चीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, एक ब्लड डोनेशन के ज़रिए और दूसरा इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। जो हमारे मेडिकल या हेल्थ केयर सेटिंग्स में इन्फेक्टेड जो आलात इस्तेमाल हो रहे हैं या सिरिंज बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। लड़काना का आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, लड़काना में 3-4 साल पहले एक बहुत बड़ा आउटब्रेक आया था और 1 साल में हमारे पास तकरीबन लड़काना में एक छोटी से इलाके से 1200 पेशेंट और वो भी बच्चे रजिस्टर हुए जिनके माँ बाप नेगेटिव हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उनको बार बार इस्तेमाल शुदा सिरिंज लग रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी सामने आ रहा है। बलूचिस्तान में इस वक्त हमारे पास जो मैंने कहा कि 12 से 16 हज़ार केसेस है, हमारे पास 3400 केसेस रजिस्टर्ड है। दैट मीन्स कि 8000 से अबव ऐसे लोग हैं जिनको अपना HIV स्टेटस नहीं मालूम और वो बेखबरी में इस चीज़ को आगे भी फैला रहे हैं, अपने बीवी तक फैला रहे हैं, अपने बच्चों तक फैला रहे हैं, या अगर वो कभी ट्रामा के शिकार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बार बार यूज़ होते हैं, आम लोगों तक फैला रहे हैं। हमारे पास 5 सेंटर्स हैं, कोयटा BMC में, तुर्बत में हमारा एक सेंटर है, हब में हमारा एक सेंटर है, नसीराबाद में एक सेंटर है और दौरलाई में एक सेंटर है। यहाँ पे हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और वहाँ पे उनका फॉलोअप करते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ, इन 3400 केसेस में से 329 यानी तकरीबन 10% केसेस ऐसे हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए लगे हैं। अनस्क्रीन्ड या इम्प्रॉपरली स्क्रीन्ड ब्लड के ज़रिए बच्चों को ख़ास तौर पर तकरीबन 10% केसेस ऐसे हैं जिनको HIV हुआ है। अब वो बेचारे आए थे थैलेसीमिया का इलाज करने, या वो बेचारे आए थे ट्रामा में अपना इलाज कराने, वो ब्लड बह चुका था उनका और वो जो है ना इलाज कराने आए थे। जान तो बच गई, लेकिन एक लाइफ लॉन्ग जो है ना रोग अपने साथ उसने ले लिया और माशरे में एक बड़ा टेबू अपने साथ उसने या स्टिग्मा अपने साथ अटैच कर लिया। जो बलूचिस्तान के मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्योंकि आप लोग भी इसी बलूचिस्तान के हैं और आप लोग हो सकता है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के हो, आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं। शायद हम कुछ और समझ रहे हों, लेकिन हकीकत उस तरह नहीं होगी। कोयटा ज़ाहिर है सबसे बड़ा शहर है और हाई रिस्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे केच है, तीसरे नंबर पे पशीन है, चौथे नंबर पे किला अब्दुल्ला है। दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड विद अस। जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड विद अस है उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं। चौथे नंबर पे किला अब्दुल्ला, 5वें नंबर पे नोशकी, 6ठे नंबर पे लसबेला हब, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, वैसे लसबेला पहले कहते थे, और 7वें नंबर पे शोर,
8वें नंबर पे नौरलाई, 9वें नंबर पे गवादर और 10वें नंबर पे किला सैफुल्ला। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड है। HIV है क्या? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि HIV या एड्स है क्या। HIV एक वायरस का नाम है और एड्स एक बीमारी का नाम है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप्स यानी सबसे के ज़रिए फैलता है, और ये जब हमारे बदन में इंटर होता है तो ये हमारे जो मुदाफ़ियती निज़ाम है या इम्यून सिस्टम है उसको तोड़ता है, उसको कमज़ोर करता है, और एक ऐसा स्टेज आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रहता। जब ये पोजीशन आती है कि हमारा बदन लड़ाइयों से बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं होता है तो हम पर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हमलावर होते हैं। छोटे से छोटा इन्फेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है तो हम एड्स की सूरत हाल पे चले जाते हैं। और एड्स एक बीमारियों के मजमूए को कहते हैं जो HIV वायरस के एंड स्टेज में होता है। मिसाल HIV वायरस आज अगर लगेगा तो 8 से 10 साल बाद वो एड्स की सूरत हाल इख्तियार करता है, लेकिन उस सूरत में कि उसने ट्रीटमेंट ना ली हो। अगर ट्रीटमेंट ली हो तो शायद वो एड्स तक कभी भी ना पहुंच सके। HIV या एड्स की जो है ना इस बीमारी की अलामात क्या है? अनएक्सप्लेन्ड फीवर, हमेशा बुखार रहना, बदन पे मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेस या दानों का निकलना, बदन के मुख्तलिफ जॉइंट्स में सीवियर पेन का होना, खदूद जो हमारे होते हैं लिम्फ नोड जिसको कहते हैं वो इलार्ज होते हैं, और अनएक्सप्लेन्ड और सडन वेट लॉस, एकदम से बंदे का जो है ना वो वज़न कम हो जाता है, और क्रॉनिक डायरिया या लिम्फो डायरिया जो कि आमतौर पर एंटीबायोटिक्स या फ्लूइड से 2 से 7 दिनों में ट्रीट हो जाता है। एड्स के मरीजों में ये डायरिया महीनों में ट्रीट नहीं होता है, या अगर चेस्ट इन्फेक्शन होता है या कोई और इन्फेक्शन होता है जो अमूमन 7 दिनों में जो ट्रीट होते हैं या जो सही होते हैं वो महीनों में भी ठीक नहीं होते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी दूसरा मैंने हाई रिस्क ग्रुप्स आपको बताए थे, उसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि HIV फैलता कैसे है। HIV का सबसे पहला जो रूट है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन क्योंकि ये शुरू में जब फैला भी था तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ज़रिए फैला था, और बहुत अरसे तक ये सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही था। उसके बाद जब ये मिसाल कभी इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र में पहले इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र में आया तो फिर ये उस कम्युनिटी में आगे बढ़ने लगा, या बाज़ों का जिस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ये बहुत बाद में फैलने लगे। तो ये पेनिट्रेटिव सेक्स के ज़रिए फैलने का इसका पहला ज़रिया है, और जो भी बंदा HIV का पॉजिटिव हो, चाहे वो एक्टिव सेक्स पार्टनर हो या पैसिव सेक्स पार्टनर हो, जिसमें भी होगा, अगर पेनिट्रेटिव सेक्स होगा तो वो दूसरे को फैलेगा। फिर नीडल्स एंड सिरिंजेस या इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिस तरह अताई डॉक्टर हमारे यूज़ करते हैं डेंटल के प्रोसीजर्स में, या हमारे कैजुअल्टीज़ में, या हमारी सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर वो साफ़ नहीं है ऑटोक्लेव से, वो इन्फेक्शन फ्री नहीं हुए, जहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ये एड्स मिलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक और बड़ा ज़रिया जो है ना वो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अगर माँ पॉजिटिव है और वो अनट्रीटेड है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, तो चांसेस है 15 से 30% कि उसका आने वाला बच्चा जो है वो HIV का शिकार होगा। लेकिन अगर वो माँ ट्रीटमेंट ले रही है और वो वायरली सप्रेस्ड है और अपना रेगुलर चेकअप करा रही है, तो उसका HIV फ्री बच्चा होना मुमकिन है, और उसको हम फिर प्रोटोकॉल्स के तहत ट्रीटमेंट भी देते हैं, और वो फिर सारी ज़िंदगी HIV फ्री रह सकता है। लेकिन यह है कि अगर उसने माँ ने ट्रीटमेंट ली हो और बच्चे को प्रोफाइलेक्टिक जो ट्रीटमेंट है वो मिली हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए 90% चांस है कि अगर अनस्क्रीन्ड या इम्प्रॉपरली स्क्रीन्ड ब्लड किसी को लगे तो 90% चांस है, सबसे ज़्यादा रिस्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है, 90% चांस।
تو یہ بہت ضروری ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ پراپرلی اسکریننگ کے بعد ہو. پھر چھوٹے چھوٹے جس طرح ناک اور کان خواتین جو ہے نا جولرس کے پاس جاتی ہیں، اس میں سوراخ کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، ٹیٹوز جو بدن پہ لگاتے ہیں، یہ ایک بڑا کامن ذریعہ ہے جس سے HIV پھیل رہا ہے ہمارے ذریعے. HIV کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پریونشن جو میں نے آپ کو ذرائع بتائے، ان ذرائع کو پریونٹ کریں گے تو HIV پریونٹ ہوگا. مثال سیف سیکس کریں گے، اپنے لائف پارٹنر تک محدود رہیں گے، کنڈوم کا یوز کریں گے، یا پری ایکسپوجر یا پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس ٹریٹمنٹ لیں گے، تو پھر HIV کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. نیڈل اور سرنجز آج کل پاکستان میں میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، جو آٹو لاک سرنجز ہیں، یہ پالیسی میرے خیال میں بلوچستان میں بھی اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آٹو لاک سرنجز ابھی آنا شروع ہوئے ہیں. جو سرنج استعمال ہوگی وہ صرف ایک ہی دفعہ یوز ہوگی. تو یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. جس طرح میں نے لڑکانہ کی مثال دی، 1 سال میں 1200 بچے ہمارے پاس رجسٹر ہوئے صرف ان سرنجز کی وجہ سے. تو اگر یہ نیڈلز یا سرنجز یا جو انسٹرومنٹس ہیں یہ پاک صاف ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ HIV کو آگے نہیں پھیلا سکتے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا، مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن کو ہم روک سکتے ہیں پرووائڈیڈ دیٹ کہ ماں ٹریٹمنٹ لے رہی ہو اور وہ وائرلی سپریسڈ ہو. ہمارے پاس ایسی فیملیز ہیں جو کہ 10 سال سے وہ HIV کے پیشنٹ ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے جتنے بھی بچے ہوئے ہیں وہ HIV فری بچے ہیں. اور یہ پاکستان میں سب سے جو بہترین ریشو ہے وہ بلوچستان کی ہے HIV فری بچوں کی فرام مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن کے لیے. یہ ہماری یہ ایک بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ HIV پازیٹیو کپل سے HIV نیگیٹیو پیدا ہو رہے ہیں. اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جس طرح بلڈ بینک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، سرجن بیٹھے ہوئے ہیں، ٹراما سینٹر برن یونٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پراپر جو ہینڈلنگ اینڈ ڈسپوزل آف شارپ آبجیکٹس جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے. نیڈلز آپ کے جو ہے نا یا آپ کے جو انسٹرومنٹس جو شارپس ہوتے ہیں، بلیڈز ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پراپرلی ہینڈل کیا جائے اور پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے تو پھر اسپتالوں میں خطرہ نہیں رہتا HIV کے پھیلنے کا. HIV کی ٹریٹمنٹ، HIV کیوریبل نہیں ہے لیکن ٹریٹیبل ہے. یعنی اس کا کیور یہ نہیں ہے کہ جس طرح عام بیماری ہے اینٹی بایوٹک لیے بیماری ختم ہو گئی. HIV کی ٹریٹمنٹ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے. جو بندہ ٹریٹمنٹ لے گا وہ وائرلی سپریسڈ ہوگا، وہ ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جو کہ 15 18 سال سے پازیٹیو ہیں، لیکن الحمدللہ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. تو اور بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. ایک بندے کی 1 مہینے کی پیشنٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے کی ایک ٹریٹمنٹ آتی ہے. اور فالو اپ کی جو ہم ان کے ٹیسٹس کرتے ہیں وہ ٹیسٹ بھی ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ 25 سے 30 ہزار روپے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جو وائرل لوڈ ٹیسٹ ہم کراتے ہیں آغا خان میں ہوتا ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے کا ہے. اور CD4 ٹیسٹ ہم کراتے ہیں وہ 12 سے 15 ہزار روپے کا ہے. تو مثال یہ بہت مہنگی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو. تو یہ جو میں نے پریونشن کے آپ کو ذرائع بتائے، یہ اگر ہم فالو کریں اپنے اپنے سیٹ اپس میں تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس بیماری کے خلاف آگے اچھا کام کر سکتے ہیں. اور یہ ٹریٹمنٹ ہم 5 سینٹروں میں فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تھینکس ٹو گلوبل فنڈ، ہمیں گلوبل فنڈ والے یہ ٹریٹمنٹ ابھی دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا میں اور وہ کرتا ہوں، HIV ٹیسٹنگ پہ ہم آتے ہیں. جو بلڈ بینکس ہیں ان کے لیے ظاہر ہے جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا اسٹرکٹ ہے، اور وہ اسٹرکٹ ہونا بھی چاہیے کہ ہر جو ٹرانسفیوژن کا بلڈ آتا ہے اس کو جو ہے نا ایلائزا سے یا اس سے جو ہے نا ٹیسٹ ہونا چاہیے. عام پیشنٹ یا عام ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں پھر ہم HIV کٹس کے ذریعے پیشنٹ کے ٹیسٹ کرتے ہیں. 3 قسم کے کٹ آتے ہیں جو کہ 5 سے 10 منٹ میں ہمیں وہ رزلٹ بتاتے ہیں. جو WHO اپرووڈ کٹس ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آف کیئر ہوتے ہیں. مثال ادھر بھی میں بیٹھ کے اگر ہم سب ابھی
HIV स्क्रीनिंग टेस्ट करें तो 5 मिनट में हर बंदे का रिजल्ट 5 से 10 मिनट में रिजल्ट आ सकता है। वो WHO अप्रूव्ड किट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे ब्लड बैंक्स है उसका ज़ाहिर है हमीद साहब बैठे हुए हैं, वो शायद आप लोगों को बता सकें कि उनका जो क्राइटेरिया वो क्या है। बलूचिस्तान में ये जो टेस्ट अवेलेबल है वो हमारे तकरीबन हर PHQ में हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, हर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हमने ये प्रोवाइड किए हुए हैं। ऑफ एंड ऑन हमारे पास ब्लड बैंक्स वाले आते हैं डोनेशन मांगने, हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं। और ये किट्स बहुत महंगी किट्स हैं, जो मार्केट में आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 50, 60, 100 रुपये वाली किट्स, हमारी एक किट जो है ना वो 350, 400 रुपये की किट है, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग किट है। अदरवाइज कंफर्मेटरी किट तो उससे भी ज़्यादा महंगी होती है। तो ये HIV के बारे में एक मुख्तसरन मैंने कोशिश की कि बहुत ही मुख्तसरन आप लोगों को बता सकूं। HIV जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम प्रिवेंट करेंगे तो वो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत इकनॉमिकल पड़ता है और बहुत आसान पड़ता है। अगर हम हर मरीज को, जब मैंने कहा ना पाकिस्तान के अगर हम जो 3,30,000 जो केसेस हैं, अगर हम उनको आज डायग्नोज करें और आज ही हम उनको ट्रीटमेंट पे डालें और वो वायरली सप्रेस्ड हो जाए तो हम फिर जो है ना प्रिवेंशन से वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग को 3,30,000 लोगों तक पहुंच सके, हो सकता है तादाद इससे भी ज़्यादा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सेटअप्स हैं, चाहे वो हमारे इमरजेंसी सेटअप्स हैं, ट्रामा सेटअप्स हैं या ब्लड बैंक्स हैं, वहाँ पे हम HIV प्रिवेंशन में अपना रोल अदा करें और इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। मैं एक दफ़ा फिर ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें इनवाइट किया और इस अहम मौजू में बात करने का मौका दिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमारी कैबिनेट डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। मीन्स ही इज़ वेरी सोशल, ही वॉज वेरी सोशल एट दैट टाइम विद अस। हमारे आइडियाज़ सुने, हमारी बात सुनी, डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा करेज किया। जब हम यहाँ से निकले तो हमारी सारी टीम ने डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, क्योंकि हमने जो जज्बे से काम करना था वो जज्बा और बढ़ गया। तो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर एवर। डॉक्टर साहब को लेट भी हो रहा है, हम डॉक्टर साहब को शील्ड प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर साहब वुड यू प्लीज़ कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल अहद साहब आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ क्लैप फॉर द डॉक्टर। मेरे जो बातें होंगे इंटरेक्टिव होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपसे भी पूछा जाएगा, स्पेशली जो यूथ पीछे बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल द ऑर्गेनाइजर्स के मुझे यहाँ भी बुलाया एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नोमान शाह साहब से एक क्वेश्चन है, मेरे नोमान शाह साहब, कि ये कंसेप्ट आपको कहाँ से आया? बिकॉज हम लोग वर्ल्ड डे बनाते हैं, वर्ल्ड डोनर डे ऑन 14 जून। आपने हालांकि एक से ब्लड डे बना लिया। सो व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट दिस? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर बेसिकली मैं इस गुनहगार इवेंट का एक गुनहगार साधना सा एक मुसाफिर हूँ। ये जितने पीछे हमारे भाई बैठे हैं कोई ना कोई ब्लड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। मैं खुद एक RBC डोनर ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे पास थैलीसीमिया, कैंसर, हेपेटाइटिस के लिए रोज़ केसेस आते हैं और 90% गायनी से केसेस आते हैं। तो मेरे साथ एक वाक़या हुआ जो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड में शेयर भी किया है कि मैं ब्लड देकर आया, 3 महीने के अंदर अंदर ब्लड दिया और वो ब्लड यूज़ नहीं हुआ, मिस हो गया, नाली की नज़र हो गया। मेरा B नेगेटिव ब्लड है। आज मैं अपनी फैमिली में अगर किसी को ब्लड देना पड़ा तो मैं नहीं दे पाता। बड़ी मेरी एक पोजीशन होगी कि मैं अगर माँ को अपनी ब्लड ना दे पाऊँ। मेरी माँ आल्सो B नेगेटिव ब्लड। तो हमने उसमें एक वीडियो बनाई, दोस्तों ने कहा कि हमने कैंप करना है। मैंने कहा वाई कैंप, क्यों कैंप लगाएं? हमारे खून से अगर कोई और पेशेंट को इन्फेक्टेड होता है, कोई अगर मेरे ब्लड से किसी को और कैंसर जा रहा है तो वो सवाब की जगह जो है गुनाह लाजिम हो जाएगा। तो हम सब ने टीम बनाई कि आज हम ये डे इस तरह करते हैं कि आने वाले वक्त जो लोग पीछे बैठे हुए इसमें नाम आगे पीछे हो जाएंगे, कोयटा ब्लॉनर है, सारे ब्लड सोसाइटीज़ के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको पता चले कि हमारी नेकी जो है वो हम नेकी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ऐसी रिलायबिलिटी है, ऐसी रिसोर्सेज हैं या नहीं जो ब्लड सही जगह यूज़ हो रहा है। हमें कहाँ ब्लड देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, बस ये पूरा एक सर्कल बना और हमने इसको इवेंट के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। फिर आद भाई अफान मेरी जान के उठे, इन्होंने कहा कि नुमान भाई साथ हैं, आरिफ साहब ने हमें साथ दिया
मेरी बहन बड़ी लुबना साहिबा ने हमें अगर ये प्रमोट ना किया होता तो शायद मैं ना आता। मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे बड़े असवतुल्ला कुरैश साहब अगर ये ना करते तो आज हम सारे इस इवेंट में ना होते। दाऊद साहब, कामरान साहब, नईम भाई, शेबी, जिसका दे रहा हूँ, ये मेरा एडवांस में स्पीच ख़त्म हो गया। सर की बात सुने, ये बहुत ज़रूरी है। कोयटा के हेमोफीलिया के डॉक्टर हैं और बहुत ज़रूरी सुनो मेरी जान के टुकड़ों भाइयों, मोहब्बत में इसलिए बता रहा हूँ कि गैदरिंग सही रहे। हम नेकी कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं वो हमें आखिरत में पता चलेगा। लेकिन अगर हम जानते हैं रास्ता तो हम आज सही रास्ता चुनाव करना हमारी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। किट टेक्निक इज़ गुड टेक्निक, सस्ता है, हर जगह अवेलेबल है। बट इशू ये है कि वो अगर जरासीम की क्वांटिटी ब्लड में कम हो तो वो डिटेक्ट नहीं करता। तो होता क्या है कि वो जो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, हम लोग पेशेंट को कह देते हैं, डोनर को कह देते हैं कि आप में वो जरासीम नहीं है, तो वो जरासीम मौजूद होता है। तो इट्स अ विंडो पीरियड। ये सारे जो टेक्निक्स आ रहे हैं बेसिकली ये विंडो पीरियड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मैं सिंपल एग्जांपल ये दूंगा कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV 90 डेज़ के अंदर यानी 3 मंथ्स के अंदर हमारे खून में क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक किट इसको डिटेक्ट कर सकता है 90 डेज। अगर उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें वो है इलाइजा। तो इलाइजा की क्वालिटी है कि वो तकरीबन 40 to 50 डेज़ के अंदर वो डिटेक्ट कर सकता है। किट 90 डेज़ में और इलाइजा जो है वो 50-45 डेज में। उसके बाद जो सबसे एडवांस है वो ईक्लाया है। सबसे एडवांस नहीं, सेकेंड टाइम है। PCR या नेट टेस्टिंग के बाद जो है वो ईक्लाया है जो कि हमारे खुद सेंटर में यूज़ हो रहा है। वो ऑलमोस्ट 20-15 डेज़ तक ये विंडो पीरियड स्टार्ट करता है। तो कहाँ 90 डेज़, कहाँ 15 डेज़। जो इस ड्यूरेशन में हमारे पास डोनर्स आते हैं हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वो है नेट टेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, जिसको हम लोग PCR भी कहते हैं। वो ऑलमोस्ट 10 डेज़ तक ये विंडो पीरियड लेकर आए हैं। यानी अगर किसी के खून में जरासीम मौजूद है तो विद इन 10 डेज़ अगर वो एक्सपोजर हुआ है तो PCR की क्वालिटी ये है कि उसका हम लोग 10 डेज़ के अंदर ही पकड़ सकते हैं। यानी वो विंडो पीरियड जो किट 90 डेज़ में पकड़ सकता है, PCR उसको 10 डेज़ के अंदर ही पकड़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया, स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर लुबना कि उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोग मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो इलाइजा होना चाहिए और ब्लड बैंकिंग में भी इलाइजा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमें एक स्टेप और आगे जाना चाहिए। जो कैटेगरी 4 के हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमें PCR कराना चाहिए कि PCR वहाँ पे ज़रूरी है। एंड स्पेशली RBC जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इलाइजा से PCR की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया कि आज इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो कि आए आज। एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्लिनिकली इस पर बात करूँगा सेव और सेव ब्लड डे के हवाले से। चूँकि क्लिनिकली मेरा ज़्यादातर वक्त जो इमरजेंसी बर्न यूनिट ट्रामा में होता है तो वहाँ पे हमें बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं रिगार्डिंग ब्लड। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत से ब्लड बैंक्स वाले बैठे हुए हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करें और जैसे मैडम ने भी डिस्कस किया, डॉक्टर कईम साहब ने डिस्कस किया, तो स्क्रीनिंग में हमारी 3-4 बीमारी है उसको प्रॉपरली स्क्रीन करें और उसका ये होगा कि इमरजेंसी में जो भी ब्लड लगेगा हमें सेफ मिलेगा। और जैसे इन्होंने पहले सब यही बोल रहे हैं कि एक ब्लड जो है अराउंड 3 to 4 लाइफ सेव करते हैं, स्पेशली गायनी के पेशेंट्स में ड्यूरिंग डिलीवरीज और अक्सर ब्लड नीड होती है और उस टाइम अटेंडेंट्स को पता नहीं होता कहाँ से ब्लड अरेंज करते हैं, वो उन्हें जहाँ से भी ब्लड मिलता है वो बाकी ले आते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो बस मेरा मैसेज, आज का मैसेज, टेक होम मैसेज ये है कि हमारे जो ब्लड बैंक्स वाले हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करके और प्रॉपर क्रॉस मैचिंग करके ब्लड प्रोवाइड किया करें। थैंक यू। हेपेटाइटिस को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इनिशियली इस बीमारी का पता नहीं चलता। हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D and E, जिनमें हेपेटाइटिस A and E गंदे पानी के इस्तेमाल से फैलता है एंड अनफॉर्चुनेटली
बलूचिस्तान भर में पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। इस प्रोग्राम के ताउन से मैं ये मैसेज सबको देना चाहूँगी कि काइंडली पानी को बॉयल करें, पानी को बॉयल करके पिएं ताकि बच सकें। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी हैं, इनके मेन कॉज है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। अब आप तो किसी के साथ नेकी कर रहे हैं ब्लड दे के, ब्लड डोनेट करके, लेकिन क्या वो नेकी उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगी। सिर्फ 2024 और 2025 1 ईयर का डेटा है, जिसमें हेपेटाइटिस बी के केसेस जो पहले 8,617 थे, उससे इंक्रीज करके 10,225 हो गए, और हेपेटाइटिस सी के केसेस जो पहले 5,817 थे, इंक्रीज होके 6,835 हो गए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए, और हेपेटाइटिस बी एक ऐसी सिचुएशन है कि जो बाद में कन्वर्ट होता है हेपेटाइटिस डी पे और लिवर कैंसर की बेस बनता है। इसकी मेडिकेशन हमारे प्रोग्राम के थ्रू हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव मेडिकेशन है, जो इसकी टेस्टिंग है वो एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इसके रूट कॉज को पकड़ना है। और रूट कॉज क्या है? रूट कॉज यही है कि बीमारी इस हद तक ना फैले कि वो हेपेटाइटिस बने और वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाए। उससे बेहतर क्या है कि अगर आप अपना ब्लड दे रहे हैं किसी को, तो आप काइंडली स्क्रीन ब्लड दें, जिसके ऊपर पूरे प्रोग्राम का फोकस है। सेकेंडली, जो मेल्स हैं मोस्टली बार्बर शॉप पे जाते हैं, क्या रेजर्स या ब्लेड्स वो जो यूज़ कर रहे हैं क्या वो न्यू है? ये आप लोगों ने खुद इंडिविजुअली अपनी ड्यूटी करनी है और इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो रेजर्स या ब्लेड्स वो बिल्कुल न्यू हो। अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, जो आलात वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो स्टेरिलाइज्ड हैं या नहीं है? छोटी छोटी केयर्स आपने करनी है, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इससे ना सिर्फ आप हेपेटाइटिस से बचेंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी बचाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मैं कैंसर के हवाले से जो है इस पे एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि कैंसर जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं फैलता, ठीक है जी। ये एक अगर हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट गलत है या कोई मिथ्स हैं, क्योंकि मुझसे अक्सर पेशेंट्स के अटेंडेंट्स पूछते हैं कि वालदा को कैंसर है, बच्चे उसके साथ खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं नहीं? तो बिल्कुल हर चीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ। और कैंसर जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को ब्लड के ज़रिए जो है वो कैंसर नहीं फैलता। हाँ, इस ब्लड की वजह से जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसकी वजह से मुख्तलिफ जो वायरसेस होती हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो है ना फिर कैंसर के कॉजेटिव जो है वो एजेंट्स होते हैं। जैसे अब हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और मुख्तलिफ NGOs के साथ मिल के कुछ महीने पहले सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जो है एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जो है वो वैक्सीन ने एक इवेंट अरेंज किया है तलिस्मिया के पेशेंट्स के लिए। उसमें मैंने शिरकत की, जो एक बहुत बेहतरीन इवेंट था, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे तलिस्मिया के मरीज़ों के लिए बलूचिस्तान की यूथ काम कर रही है और उसके लिए ब्लड डोनेट कर रही है, और उनके लिए जो डिसेबल लोगों के लिए जो उन्होंने कोटा रखा है वो एक बेहतरीन कदम है कामयाबी की तरफ। आज जो अलहमदी फाउंडेशन की तरफ से, अर्ज मीडिया की तरफ से और सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम हुआ था, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। एंड आई होप कि बलूचिस्तान में इस तरह के और प्रोग्राम्स होंगे ताकि हमारी पब्लिक को जो है वो ब्लड सेफ एंड ब्लड की तरफ से जो है वो शऊर मिले। आज का हमारा जो इवेंट था सेफ ब्लड के हवाले से था, और ये अलहम्द यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर था, और BBTA बहुत ही कामयाब इवेंट रहा हमारा। मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप के और इसके साथ साथ बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़ का, जिन्होंने आज के इस दिन की मुनासबत से इवेंट मुनक़िद किया ताकि सेफ ब्लड के हवाले से लोगों में अवेयरनेस आए, और ब्लड डोनेशन और ब्लड देने के हवाले से, जो कि एक बंदे को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, न सिर्फ उसकी अफादत हमें समझ आए बल्कि साथ साथ जो ब्लड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी पेशेंट को, किसी भी बंदे को, वो इस तरह हो कि वो हर लिहाज से जो उसके प्रोटोकॉल पे पूरा उतरे और वो सेफ़ ब्लड हो, ताकि जो मकसद है वो सही मानों में हासिल हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इवेंट था। मैं जो इवेंट के मुतज़मीन थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये रिक्वेस्ट कर
کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے ایونٹ پورے بلوچستان میں بار بار ہو تاکہ اچھے طریقے سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے یہ آواز لوگوں تک پہنچے اور اویئرنیس ہو. بہت شکریہ. آج جیسا کہ سی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سیو بلڈ ایونٹ منعقد کیا گیا اور ہماری کولیبریشن میں الحمد یونیورسٹی تھی. خاص طور پر میں جامعہ الرئیس پروفیسر شکیل روشان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سوشل لیڈر عارف مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سی آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ عبداللہ کاکڑ صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری جتنی ٹیم ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر ہماری آج سوشل سیکٹر میں سوشل ایکٹیوسٹ اور جتنے بھی ہمارے بلڈ سے ریلیٹڈ بینکس تھے, جنہوں نے بلوچ بیلٹ تھا, پشتون بیلٹ تھا اور بھی تمام بلڈ بینکس تھی جنہوں نے انسانی خدمت کا آج ہمیں درس دیا اور اویئرنیس دی. خاص طور پر آڈینس آج آئی ہوئی تھی, انہیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کس طرح ہم بلڈ سیو کر سکتے ہیں. بلوچستان کی تاریخ میں فرسٹ ان دی ہسٹری آف بلوچستان جیسا کہ سیو بلڈ ڈے منایا گیا ہے, وہ بھی سی آرگنائزیشن کی کولیبریشن سے اور الحمد فاؤنڈیشن کے اشتراک سے, جو کہ یہ صوبے کے لیے یہ ایک پیغام ہے, یہ ایک جو ہے موٹیو ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ بلڈ کے اوپر کام کرنا چاہیے. خاص طور پر بلوچستان میں اس ٹائم سیو بلڈ کی سب سے بڑی جو ہے ضرورت ہے. ایون کہ جب کیسز آتے ہیں, جب اون بلڈ کی جو ہے پرسن کی جو نیڈ ہوتی ہے, لیکن جب 8 بلڈ جو خون کی بوتلیں آتی ہیں تو 7 جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ انسانیت کا درس ہے اور ہمیں اس چیز پر سب سے زیادہ ہمیں جو ہے کولیبریشن کرنی چاہیے اور ہمیں شرکت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو.